नमस्ते एवरीवन, मैं मास्टर प्रवीण। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और खुश हैं। गाइज, आज की जो वीडियो है, इन दैट वीडियो आई टुक ए पोस्चर, द कैमल पोस्चर। आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑन द एक्सपेक्ट कि एक बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल पर आप इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे। All the movements and all the basic terms about the alignment, some fundamental things I also try to be explained. You are a beginner, intermediate, advanced level, you are a yoga teacher, you are professional, everyone, आप सभी को इस वीडियो से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। मेन थिंग कि आप सेफ तरीके से, एक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए सो दैट यू कैन हैव द रिजल्ट। सो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस एंड यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक इट, सो प्लीज like, share and subscribe with your friends and family friends. So thank you so much. Namaste. Enjoy the class. Okay guys, so here I will be explaining to you about the camel posture. So in camel posture we will be also understand all the aspect of back bending. हम बैक बेंडिंग जो एस्पेक्ट हैं आपकी अपर बैक बेंडिंग, मिडिल एंड योर लोअर बैक बेंडिंग हो, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, हाउ यू हैव टू बी वर्क ऑन दैट। अनदर थिंग, सम मेजर एंड कोर प्रिंसिपल बिलोंग टू द बैक बेंडिंग, लाइक दैट इज योर नेक पोजिशन, योर शोल्डर पोजिशन, योर pelvic पोजिशन, then your rib cage, your thoracic opening, your core connection and your breathing technique, work on the spine. So you will be learn all these things in one portion, and later then we also explain ki what are the different levels we can be modify. हम अलग अलग modify पोस्चर में कैसे कर सकते हैं ताकि आप पर्टिकुलर लेवल को भी आप इजीली आप एक्सप्लेन कर पाए। So camel pose, one of the back bending posture. Camel means ऊंट in Hindi we call. So firstly you have to be stand on your knee. Understand the distance in between knee. ये भी एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है समझने के लिए। Usually when we are teaching the camel pose, the distance should be in between knee and then feet as per your hip. Or even if you practice with the knee and feet closer, do the practice is not a wrong thing. Only the impact or effect of this particular pose will be changed. When you practice the knee and feet closer, जब आप knee और feet को मिलाकर करोगे तो पोस्चर की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। So at a beginning will be practice with a distance, हम एक distance के साथ में हम करेंगे। Another thing, the position of your feet, आपके feet की पोजीशन क्या होनी चाहिए? It should be flattened or it should be curl the toes. वो ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए। तो both are right, दोनों ही ठीक है। Initial level, if someone is a beginner, अगर कोई beginner है, they are doing the practice one time, या फिर they do not have that much kind of the stability, वो stability नहीं है आपके muscles के अंदर, so we recommend that you can be curl the toes, because curl the toes will give you the more stability. वो थोड़ा सा आपको और stability और strength आपको वो provide करता है। This is okay, this is okay, so you can be fine and you can be choose your own level. इसके बाद will be cover the back bending. Firstly I'll be cover like your lower back bending aspect. एक बेसिक तरीके से समझेंगे। पुट योर हैंड्स ऑन योर बैक गाइस, दोनों हाथ आप अपने बैक पर रखिए इस तरीके से। सो लेट्स यू वर्क स्टेप बाय स्टेप। नंबर वन, ओपन द शोल्डर, शोल्डर को ऐसे ओपनिंग दीजिए। व्हेन यू गिव द ओपनिंग इन योर शोल्डर, सो इट विल गिव द ओपनिंग इन योर अपर बैक एज वेल। नंबर टू स्टेप, you have to drop your shoulder down. Why? When you drop the shoulder down, you can give the space to your neck. आपकी स्पेस, आपकी नेक को स्पेस मिलेगा, and we drop the head, it will be easier for you. So drop, open the shoulder, drop your shoulder. Now the pelvic movement we call the frontal. हिप को सामने की तरफ पुश कीजिए। When you come in the frontal, you will feel that your butt gets squeezed. ये आप देख लीजिएगा। This one. Now come on the breath. breath के साथ हम correlate करेंगे अपनी spine को। Inhale. Inhale के साथ you have to be lengthen the spine, means the spine position. स्पाइन को लेंथन कीजिए। सेम, ड्रॉप द शोल्डर, एल्बो क्लोजर एंड एक्सेल। एक्सेल के साथ यू हैव टू पुश योर हिप फ्रंट एंड ड्रॉप द हेड। नाउ शोल्डर अवे, व्हेन यू ड्रॉप द हेड इट शुडंट बी श्रिंक, ऐसे नहीं ड्रॉप करना उसको। जस्ट लेंथन द नेक एंड देन जस्ट बी ड्रॉप। मेंटेन दिस पोजीशन। नाउ द पोजीशन अबाउट योर हिप एंड नी, इट शुडंट बी दिस wrong and it shouldn't be lean too much. मतलब आपका हिप और नी जो है that should be aligned here, वो आपका अलाइन होना चाहिए। एंड यू सी
we follow each and every principle of the back bending in this posture. अब इसके बाद आप कोई भी एक्सपेक्ट लेंगे बैक बेंडिंग का, we did lower, थोड़े से हाथ आप ऊपर लेकर चलेंगे, when you take hands a bit up in between your thoracic and the lumbar, it will be cover your middle spine. Same thing, open shoulder, drop your shoulder, front tilt, inhale, lengthen spine, exhale, then bend back. Shoulder away, elbow closer, neck, lengthen it, tuck the chin. Hold 1, 2, 3, 4. Inhale, come back, exhale, relax. Same principle. I'm just changing the aspect, guys. इसके बाद number 3, I will be cover my upper back. अब upper back पर hands will be more up, maximum up side. इसको आप हाथ बेशक ऐसे रखिए और even one another form you can even make a namaste in between shoulder blade. Why? Because जब आपके हाथ अपर स्पाइन को कवर करेंगे, so it will give the maximum opening to your upper spine. Other things will remain same, बाकी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी आपकी. Open shoulder, drop shoulder, hip push front side. Now breath, inhale and exhale. Bend back. Breath 1, 2, 3, 4. Inhale, come back and exhale, relax. We did work on middle, your lower and upper back bending. हमने तीनों एक्सपेक्ट पर काम किया, बट जो भी हमने एक्सपेक्ट चूज किया, वी फॉलो द सेम प्रिंसिपल को हमने बार बार हमने रिपीट किया. अदर थिंग अबाउट द होल्डिंग ऑफ एनी पोस्चर दैट कैन बी आल्सो डिपेंड ऑन यू गाइज. ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज इफ यू आर होल्डिंग द पोज, एवरीवन कैन बी हैव देयर ओन स्ट्रेंथ लेवल एंड देन फ्लेक्सिबिलिटी लेवल. सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. whenever you are doing any yoga posture, you need to be combine the balance in between flexibility and strength. Reason behind it, क्योंकि कई स्टूडेंट होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत है but no strength. तो क्या होगा, when you have so much flexibility but you do not have the strength, and when you will be when you trying to hold that particular pose, you are not able. आप उसको movement तो आप कर पाओगे, back bending, come back, front forward bending, back bending, but when I say you hold, that time you do not, if you do not have that strength, so your breath will be start distracting. आपका breath वहां पर distract करेगा and it can be lead to any injury as well. तो यहाँ पर आपको flexibility और strength में आपको वो एक जो balance है that you have to be maintained. वो कैसे करेंगे आप? That thing you have to be implement and have to be experienced by yourself. Other thing will be remain same. Expect can be anything, lower, middle and upper. कोई भी expect हो सकता है. Example, if your flexibility level here, आप यहाँ तक जा सकते हैं. But when you breathe, if you are distracting your breath, you are not feeling comfortable. So better you little bit come up. And here you feel breath. Yes, I can be breath easily in and out. So like that you have to be combine the balance. तो आप उस लेवल पर लेकर जाइए अपने आप को जहां पर आप अपनी ब्रेथ को इन एंड आउट, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन तरीके से कर पाए. जैसे ही आपने अपना लेवल क्रॉस किया, फ्लेक्सिबिलिटी इज ओके, बट व्हेन यू क्रॉस द लेवल एंड होल्डिंग एंड योर ब्रेथ, सो व्हाट विल हैपन, योर ब्रेथ विल डिस्ट्रैक्ट. जब आपका ब्रेथ डिस्ट्रैक्ट होगा, योर ब्रेथ विल बी गेटिंग फास्टर. ब्रेथ आपका फास्टर होगा, इट मीन्स योर बॉडी स्टार्ट शेकिंग एंड वाइब्रेटिंग. Then what will be happen? Your muscle get tense. Muscle get tense हो गए, it will impact your blood circulation. And if it not in a blood circulation, what will be happen? It may the reason can be have the dizziness, especially in the back bending. The symptoms can be fainting or sometimes even वो चक्कर का आना and then even fall down. Because I experience a lot with my class and that कई बार students होते हैं, they are just forcing and they are holding the breath. क्या होता है कि कई बार हम पुश बहुत करते हैं ना, समटाइम्स जब योर स्ट्रेंथ लेवल इज इंक्रीजिंग, योर ब्रेथ स्टार्ट डिस्ट्रैक्टिंग. जब ब्रेथ डिस्ट्रैक्ट होता है, समटाइम्स स्टूडेंट स्टार्ट होल्डिंग द ब्रेथ, वो श्वास को रोक लेते हैं, एंड दैट इज अ बिगेस्ट मिस्टेक व्हेन यू आर डूइंग एनी पोस्चर, स्टार्ट होल्डिंग द ब्रेथ. ब्रेथ कैन बी डीपर, ब्रेथ कैन बी लॉन्गर, बट प्लीज डू नॉट होल्ड द ब्रेथ. श्वास को रोकिए मत. There is just certain asana in the yoga in which you have to hold the breath, जैसे कि मंडूक आसना है. इस तरह कोई एक दो आसन होगा जिसके अंदर आपको ब्रेथ होल्ड करते हैं, बट नॉर्मली ईच एंड एवरी पोस्चर यू शुडंट रिक्वायर टू होल्ड द ब्रेथ. यस, डीपर एंड लॉन्गर वो एक पैटर्न हो सकता है, हर किसी का अपना अपना. If I do the posture, maybe my breath is longer. Someone they do, maybe their breath is shorter. So this is our responsibility how we will be combine the balance in between
between flexibility and strength and how will be measurized. आपको पता कैसे चलेगा? कैसे चलेगा पता आपको? When you will be observe your breath, guys. आप ये एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा, जब भी आप कोई भी योगासना का पोस्चर करें, कोई भी योगासन कीजिए, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, इट डजंट मैटर, अगर आप उस पोस्चर के अंदर यू फील कंफर्टेबल विद योर ब्रेथ, इट मींस यू आर डूइंग ऑन द राइट वे. जहां पर भी आपकी ब्रेथ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आपकी ब्रेथ गड़बड़ हो रही है, ब्रेथ बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है आपका, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग. वहां पर आप यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ बियॉन्ड योर लिमिट. यू हैव टू फोर्स बट विद इन योर लिमिट, दैट व्हाट योगा सेज. अगर आप डिस्ट्रैक्ट होगी आपकी ब्रेथ को, सो हाउ यू विल बी कनेक्ट विद योरसेल्फ, आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे? And yoga is all about the connection that you learn. Okay, so we have to focus no pain yoga. तो ये तो हुआ आपका कि how to bring the connection with the breath, how to engage the core muscle. What I said, you have to engage the core muscle, so that core muscle, if you engage the core muscle, it will give the strength to your core and it will give the stability to your spine. आपकी spine को stabilize देगा, आपकी spine को strength देगा. Any posture of the back bending, this is important thing. अब इसके बाद फिर आते हैं modification. हम इसको modify कैसे करेंगे? एक तरीका तो हो गया ये, आपने लोअर पर काम किया, मिडिल पर काम किया, अपर पर काम किया. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मॉडिफिकेशंस? मॉडिफिकेशंस व्हेन यू आर एबल टू होल्ड दिस, आप इसको मॉडिफाई करेंगे. एग्जांपल, ये सब हमने किया, देन यू कैन बी मॉडिफाई लाइक सिंपली होल्ड योर लेफ्ट एंकल, सेम फ्लैटन फीट और कर्ल द टो. इजियर, लिटिल चैलेंजिंग. शोल्डर अलाइन, अलाइन, अलाइन. 3 बार करके बताया मैंने आपको. अलाइन मतलब व्हेन यू अलाइन देन शोल्डर, देन only your spine will be worked exactly straight, and then drop the right hand. This one, it shouldn't be like this. So shoulder align, जब आपके shoulder align होंगे, then your spine will be worked exactly straight. Head wrong, right, wrong, right, like this. Initial level you feel difficult, नहीं कर पा रहे, leave it, curl the toes and then try. Still difficult? Where is my block? Sorry. Then you can use the block for that. Or maybe even some students struggling in the beginning, you are here, it's okay for a time being, but धीरे धीरे आपको अपनी प्रैक्टिस वहां पर लेकर चलना. आई एम नॉट सेइंग कि इन ए वन टाइम एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, एक बारी में सारी चीजें हो पाएंगी, बट धीरे 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 अवेयरनेस होना चाहिए कि यस आई हैव टू बी अचीव दिस, सो दैट योर डायरेक्शन विल टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर टेक्निक एंड पर्टिकुलर अलाइनमेंट. वो होना चाहिए, नहीं कि बस ये हो गया मेरा खत्म हो गया. नो, आपको उस लेवल तक जाने की प्रैक्टिस आपको धीरे 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 आपको करते रहना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हमने फिर इस पोस्चर को मॉडिफाई किया वन हैंड के साथ में. फिर हमने पोस्चर को मॉडिफाई किया, होल्ड द एंकल्स टुगेदर. सेम थिंग गाइस, सेम थिंग आपको फॉलो करना है यहाँ पर. हिप, शोल्डर, नेक, रोंग, राइट, फ्लैटन फीट, कर्ल द टोज. इजियर, मोर इजी, यूज द ब्लॉक. अदर थिंग विल बी रिमेन सेम, बाकी चीजें सेम रहेंगी. अब फिर इससे आगे हम कैसे चलेंगे? हाउ विल मॉडिफाई मोर? नाउ सम अनदर वे कि हम इसको इंटेंस लेवल पर और कैसे लेकर जाएंगे. सेम थिंग, लास्ट टाइम वी होल्ड द एंकल, दिस टाइम हैंड ऑन द बैक, राइट हैंड अप, इनहेल. सेम थिंग, हिप, शोल्डर, एक्सेल, बेंड बैक, हैंड ऑन द लोअर, मिडल, अपर, डिपेंड्स. एस्पेक्ट को आप चेंज कर सकते हो. सो जब आप हाथ अपने बैक पर रखोगे, द लेवल ऑफ द पोज इंक्रीज. हमने मॉडिफाई किया. बिगिनर को आप कैसे करवाओगे? बोथ हैंड्स. व्हेन यू टेक द लेवल अप, वन हैंड, एंड इसके बाद का लेवल बोथ हैंड्स अप एंड देन बैंड बैक. वो हो गया ऑन दैट लेवल. इसके बाद हाउ विल यू मॉडिफाई मोर? हैंड्स कैन बी अंडर द फीट, फिंगर टिप, आर्च द फिंगर टिप, पुश द palm. What is happening? Intensity is increasing more and more and more. जैसे जैसे हम पोस्चर को मॉडिफाई करेंगे, सो इंटेंस लेवल विल इंक्रीज. इंटेंसिटी का मतलब, हाउ विल वी मेजराइज द इंटेंसिटी? इंटेंसिटी वी कैन मेजराइज विद द लेवल ऑफ द स्ट्रेंथ एंड लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. आसन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नॉट ओनली इनफ, वी आल्सो रिक्वायर दैट स्ट्रेंथ. जब आप मूवमेंट करते हो, यस यू रिक्वायर मच फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द मूवमेंट,
But when you hold that movement, that become the pose, means स्थिरम सुखमासनम. We require this stability, we require this स्थिरता. और स्थिरता कैसे आएगी? जब आपके पास वो स्ट्रेंथ होगी. अंडरस्टैंड? ये समझ में है आपको? अब इसी तरीके से आप जितनी भी प्रैक्टिस हमने अभी तक करी, व्हाट आर द प्रैक्टिस वी डिड अंटिल नाउ, तो उन सारी प्रैक्टिस को आप एक और लेवल तक भी लेकर जा सकते हो. हाउ? वो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था. आई विल रिपीट अगेन व्हाट आई सेड. विद द डिस्टेंस एंड नाउ विदाउट डिस्टेंस. आप नी और फीट को मिलाकर कीजिएगा. नहीं कर पाए तो आप यू टेक द ब्लॉक इन बिटवीन योर थाई एंड देन रिपीट ऑल द प्रैक्टिस वंस अगेन. ऑल प्रैक्टिस वंस अगेन. Hands on the back, hands on middle back, upper back. Hold the one ankle, then hand on the back. Hold both ankles together, and you will observe. Same practice you will repeat again with the legs together. Intensity level will increase. ये जो concept है, that concept is going more deeper side that what I mentioned in the beginning, your bottom back bending, जो आपके hyper level पर थोड़ा सा चला जाएगा. तो एक ही प्रैक्टिस को आप कैसे अलग अलग तरीकों से आप कर सकते हो. सो दिस इज द वेरी गुड वे. स्पेशली ये जो वट एवर आई एक्सप्लेन ड्यूरिंग इन दिस सेशन, सो दिस इज रियली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एनी योगा टीचर, बिकॉज प्रैक्टिशनर दे डजंट नो कि टेक्निकल चीजें कई बार नहीं पता होती है. जस्ट वो लगी हुई है, रेस लगी हुई है, बस गलत फलत करे जा रहे हैं. सो हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, because for any yoga teacher this is the first priority, safety of our student. और वो एजुकेशन कहाँ से आएगी? टीचर के थ्रू आएगी. दिस इज टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आप इन सारी टेक्निक को ध्यान से सीखो और ध्यान से उनको इम्प्लीमेंट करो. एंड अनदर थिंग, ईच एंड एवरी प्रैक्टिस नॉट फॉर एवरीवन. ये नहीं कि आपने ये देख लिया कर लिया एंड यू स्टार्ट गिविंग एवरीथिंग टू एवरीवन. नो, यू हैव टू बी स्पेसिफिक. डिसाइड कि यस दिस स्टूडेंट नीड दिस, उसको उतना ही दो आप. This student required this, उसको उतना ही दो आप. It's not for everyone. Every practice is not for everyone. ठीक है, सारी प्रैक्टिस हर किसी के लिए नहीं होती है. That is all depends on the level of the student. And again, I will repeat again, level will be measurized with the level of the flexibility and strength. और flexibility और strength level को भी हम कैसे measurize करेंगे? The level of the comfortable level. ठीक है, comfortable आप कैसे feel करते हो? कई बार होता है कि सब स्टूडेंट्स से कि आई एम डूइंग द योगा, 1 महीना हो गया, 2 मंथ 2 महीने हो गए, आई एम नॉट इम्प्रूविंग, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ रही है, ये दिस एंड दैट, कंप्लेंट रोते रहते हैं, नहीं हो रहा है मुझसे. सो एवरीथिंग यू डू नॉट मेजराइज ओनली विद द फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ. आप सिर्फ सारी चीजें फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ से भी कोरिलेट मत कीजिए. यू जस्ट आल्सो ऑब्जर्व एंड यू आस्क योर स्टूडेंट. जब आपने डे 1 किया और अभी आप 1 महीने के बाद करो सेम चीज, how you feel from the day 1 and how you are feeling after 1 month. जब आपने day 1 में ये प्रैक्टिस की, how you feel, and जब day 1 महीने बाद आपने ये प्रैक्टिस की, how you feel. Even your level is the same. I am 100% sure अगर उनका लेवल सेम रहा, फ्लेक्सिबिलिटी लेवल सेम रहा, but their comfortable level will increase. जब उन्होंने day 1 किया, they feel no, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, या होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ब्रेथ का हो गया, या होल्डिंग ड्यूरेशन हो गया. बट नाउ दे आर डूइंग आफ्टर 1 month, यू कैन फील इवन देयर लेवल द सेम उसी पर जा रहे हैं, लेकिन दे फील मोर कंफर्टेबल. उनको इजीली वो वहां पर वो स्टैंड कर पा रहे हैं, होल्ड कर पा रहे हैं. सो दिस इज आल्सो इम्प्रूवमेंट. ये भी एक इम्प्रूवमेंट है. सो दिस इज डिपेंड ऑन द टीचर, लाइक हाउ यू विल बी एजुकेट टू योर स्टूडेंट. Because nowadays this is a very crazy things are going on. Ki something we want to do something very much advanced and something crazy stuff and that. It's okay, that is okay, but depends on your body type, guys. Okay? I hope you will understand. Thank you. Now your time to practice each and everything whatever I explained in this video. Come on, do the practice.